السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ انڈیا کے اندر کوئی پاگل سے آدمی لگا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کو ثابت کریں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں اور ساتھ ہی آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی حوالہ سے گفتگو سناؤں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پروش لنگی ہے یا کیا ہے؟ اللہ پروش ہے یا شری ہے؟ نہ تو اللہ پروش ہے نہ استری ہے۔ ارے اتنی خطرناک بات بول رہے ہو، اتنی خطرناک بات اللہ کے بارے میں بول رہے ہو، نہ پروش ہے نہ شری ہے۔ اللہ کو آپ پروش بھی کہہ رہے ہیں اور استری بھی کہہ رہے ہیں۔ کس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اور ارے ایک ہی بات بول رہے ہو، 4 دن سے ایک ہی بات، دن کے 5 سمے ایک ہی بات۔ ہم نے پوچھا اللہ شری ہے یا پروش ہے؟ اللہ اتر ہے کیا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اتر ہے کیا؟ بالکل بولوں گا۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، وجہ ہے اور چہرہ ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب۔ کہ اللہ کہہ رہے ہیں ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم۔ کہ تم چاہے پورب کی طرف دیکھو یا پشچم کی طرف دیکھو، وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اللہ جب شریر داری ہے تو اللہ سب سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے۔ اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اگلی زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ ایک ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 جس میں لکھا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں خدا ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، اگر یہ 4 لائن کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے، ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ ایشور ہے، کہ وہ خدا ہے۔ تو یہ سناتن دھرم کے خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے۔ لیکن میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، یہاں تک کہ تو صحیح ہے نارائن سرسوتی نے کہا ایشور کے بارے میں میں نے مان لیا، میں نے تھوڑی اور ریسرچ کیا، میں نے کہتا ہوں میں دیانند سرسوتی اور ودوان ہوں، اور ریسرچ کیا ہوں۔ ریسرچ میں لکھا ہے وید میں، پرانا میں، کہ ایک آخری اوتار آنے والے ہیں۔ اس کا ذکر دیانند سرسوتی نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں، لیکن لکھا ہے
भविष्य पुराना मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसील से हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते हैं कुंटब सुक्तात। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है, इसका मानी अवत्र मतलब खुदा ने भेजा, खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल के अवतार आएगा, उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक कार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थ वर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना पे वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसी कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई अहसान है। सबसे अहम दो यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में कुरान में। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका हक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है और अपने धर्म को जो जानता हूँ उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखिए या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में। किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई क्या है, बेगम बागी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूँ। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं डिश टीवी में भी देखता हूँ। देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं। आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा। कुछ ना कुछ होके छोड़िए मत, तहकीक कीजिए। नहीं, क्या अब करेंगे? करूंगा। अब करेंगे। अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात हाँ, एक हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा
आपने बोला इस पर कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मेरा कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है, आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 जमा 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 जमा 2 5, तो गलत है ये, गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे नहीं? आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप की है, अभी आप 1 हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, सैयद मजरुल हसन साहब नाम है उनका। सैयद मजरुल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ, तो सैयद मजरुल हसन साहब को और हमारे से 15 साल बड़े भी है, मेरे से 15 साल बड़े भी है। हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है, परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी पढ़ूंगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आप पढ़िए, तहकीक कीजिए। नाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन, हम ये कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, फरमाया वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कह दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने कोई औलाद नहीं पकड़ी। तो नाज़रीन, साथ ही हम 30 पारे की सूरत पढ़ते हैं, सूरत इखलास, उसका मताला करेंगे तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाद है। अल्लाह किस किस चीज़ से बेनियाद है? ये आप सोचें ना, अल्लाह किस चीज़ से बेनियाद है? अल्लाह बच्चों से बेनियाद है, अल्लाह बीवी से बेनियाद है, अल्लाह सोने से बेनियाद है, अल्लाह खाने से बेनियाद है, पीने से बेनियाद है। इसका तर्जुमा आप तवज्जो से, ज़हन से पढ़ें। आगे फरमाया लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने जना न वो किससे जना गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वो अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से एक हम हदीस पढ़ते हैं। ये सहीह बुखारी की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन की वो ज़ात इतनी मेहरबान है, वो रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है कि कल क़यामत का दिन होगा, जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो जहन्नम वो क्या कहेगी? हल मिन मज़ीद, और आने दे। दोज़ख ये बात कहेगी, और आने दे, आने दे। तो फिर जहन्नमी जाने के बावजूद भी जहन्नम खाली है, फिर अल्लाह पाक अपना कदम रखेंगे तो वो फ़ौरन कहेगी बस बस। अब जन्नत है, वो भी कह रही कि मुझे ज़रूरत है, मैं अभी खाली हूँ। फिर नबी पाक से फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जन्नत के अंदर नए लोग बना के वो जन्नत में डाल देंगे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जो रब कभी भी नहीं चाहता कि इनको मैं जहन्नम के अंदर डाल दूँ। हालांकि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते तो और इंसानों को बना के भी जहन्नम के अंदर डाल सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने और लोग बना के जन्नत में डाल दिए हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो आइए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुकालमा हुआ है, तो नमरूद क्या कहता है? नमरूद कहता है मैं भी ज़िंदा कर लेता हूँ, मारता हूँ। जब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब ज़िंदा भी करता है, मारता, वो कहता है ये कौन सा काम है, मैं भी कर लेता हूँ। जिसको नहीं मारना था उसको मार दिया, जिसको मारना था उसको ज़िंदा छोड़ दिया, कहता है ये मैं भी कर लेता हूँ। तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बात ये भी कही, फरमाया कि अगर तू कहता है कि मैं रब हूँ, तो मेरे रब सूरज मशरक़ की तरफ से निकालते हैं, तो मगरिब की तरफ से निकाल दे, ये वो है रब। तो अब जब नमरूद ने ये बात सुनी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा रब मशरक़ से सूरज निकालता है तो मगरिब से निकालता, फबूहित अल्लज़ी कफ़र, और काफ़र खामोश हो गया। तो नाज़रीन पता ये चलता है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात। आइए हम एक और कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह पाक के सायत के अंदर फरमा रहे हैं कुल अरअयतुम, कह दीजिए कोई है, अगर मैं क़यामत तक
یہ رات لے آؤں، رات ڈال دوں، کوئی ہے مائی کا لال میرے علاوہ دن لا سکے؟ آگے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک دن رہنے دوں، دن لے آؤں، تو کوئی ہے جو میرے علاوہ رات ڈال سکے؟ یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو آئیے ناظرین، قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا اے لوگوں آپ سارے کے سارے فقیر اور اللہ غنی ہے۔ آگے کیا فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لاہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو راتوں کو دنوں میں، دنوں کو راتوں میں تبدیل کرنے والا۔ کہیں سورج آتا ہے، کہیں چاند آتا ہے، یہ مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن جن کو آپ پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔